Hello student, this is part 4 of solving TCS previous year question aptitude. I have already uploaded part 1, 2, 3. Check the description, you'll get the link. So let's solve from the first question. First, read the question. Okay, पहले पढ़ लो question को अच्छे से. A person borrow or you can say loan some money. Whose money loan लिया? I'm taking P. And compound interest. Question from the compound interest and return 2 year. 2 साल में तो दे दिया पैसा लोन एंड लोन देने के लिए इंस्टॉलमेंट देना पड़ गया whenever you have loan and installment you should use the formula p equal to your amount or principal तुमने जो borrow किया the sum equal to 1 by 1 plus 1 नहीं यहाँ पे x mean installment तुमने कितना अमाउंट हर साल पे करोगी इंस्टॉलमेंट ठीक है सेम इंस्टॉलमेंट देते हो ऐसा नहीं पहले साल अगर तुमने 1000 दिया सेकंड साल भी 1000 देना पड़ेगा और किसी ने ईएमआई लिया तो उसका पता होगा 1 plus r by 100 पहले ईयर दैट इज पावर 1 देन x plus 1 by r by 100 देन सेकंड पावर एंड सो ऑन जितना के लिए अब यहाँ पे कितना साल के लिए बोला है दैट इज 2 ईयर तो आई विल टेक ओनली फर्स्ट 2 वैल्यू ठीक है यहाँ पे p आई नीड टू फाइंड द p एक्चुअली एंड x ऑलरेडी गिवन इंस्टॉलमेंट कितना 26450 and 1 plus r का वैल्यू कितना है 15 तो पुट द वैल्यू 15 by 100 by 1 for plus 26450 1 plus 15 by 100 for 2 so solve this equation you will get the answer so let's try to solve the equation तुम इसको सॉल्व कर तुमको आंसर मिल जाएगा तुम्हारा p और जो अमाउंट पहले वही वैल्यू लिख लो 26450 नाउ ये क्या होगा 1.5 this one 1.5 plus 1 that is 2.5 right no this is just 0.15 no 1.15 होगा this one 1.15 plus 26450 1.15 square now 1.15 square कितना होता है 1.15 into 1.15 that is 1.3333 1.3225 so this one 1.3225 now just divide you will get your answer 26450 by 1.15 2300 so it is 2300 okay कितना जीरो और एक जीरो था ना 3 या 2 0 and now divide 2.3225 वही है ना और कितना 1.3225 20,000 plus 20,000 now added it will be 43,000 so this one your answer the answer equal to 43,000 option C now moving to the next question first read the question always क्या बोला है the total surface area sphere radius r semi surface area of sphere sphere के surface area का फॉर्मूला क्या है 4 pi square this one equal to total surface area of cube side 6 सेमी तो उसका कितना आता है surface क्या बोला 6 s square okay this one formula actually now we need to find which one greater or whatever now 4 pi if we cancel this one 2 pi r square equal to 3 s square so need to find r equal to s r less than s और r greater than s कौन सा होगा ठीक है अब देखो यहाँ पे 2 into 2 pi r square and s square अब दोनों बोथ इक्वल होगा बोथ इक्वल पहले बात बोथ इक्वल तो होगा तभी भी पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 into pi का वैल्यू कितना है 3.14 एंड आई एम टेकिंग एज 3 ठीक है 3 मान लेता हूँ pi then r square into 3 s square अब देखो
एस के साथ 3 मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़े और आर के साथ 6 और 6 पॉइंट समथिंग होगा, आर के साथ मल्टीप्लाई का जरूरत, तभी 3 इंटू एस का इक्वल हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली से एस के वैल्यू आर से एस ग्रेटर देन शुड बी आर, तभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और तुमने इक्वल कर दिया यहाँ पे इक्वल, अगर आर इक्वल टू एस लिया, इज इट पॉसिबल 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 एस स्क्वायर? नॉट पॉसिबल। और ग्रेटर देन, यस ग्रेटर, क्योंकि आर के साथ तुमको 6 मल्टीप्लाई करना पड़े ज्यादा, एंड एस के साथ 3, तभी इक्वल हो रहा है। तो ज्यादा मल्टीप्लाई मींस दिस वैल्यू एक्चुअली बिगर, तो एस ग्रेटर देन आर, और यू कैन से आर लेस देन एस, और एस ग्रेटर देन आर, तो यू कैन से आर लेस देन एस। Now, next question. You need to find the medium. To find medium of this series, you need to find the comic frequency. Find करना है cumulative, और क्या था ना, cumulative frequency. Yes, cumulative frequency you need to find. Cumulative frequency जैसे marks, पहले marks लिख लो। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे अच्छे से, marks and student, ठीक है, number of student, and cumulative frequency का you can denote CF. This one actual frequency and this one CF. This one cumulative frequency. तो marks कितना है? 10, then 24, then 30, then 45, then 17, then 18. ठीक है, मीडियम। तो पहले कितना? 5, then 4, then 13, then 3, then इसका कितना? 7 8, 7 8। तो अभी तक यहाँ पे 5 है, then यहाँ पे कितना है? 9, 9 प्लस 13, यहाँ पे एक मिनट, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 नहीं, 5 4, सही है। अच्छा, you need to sort also. ओके ओके ओके, तुमको सॉर्ट भी करना पड़ेगा। यस, क्योंकि मीडियम फाइंड कर तो सॉर्ट होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में। और एक चीज है, तुमको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, सॉर्टेड। वी आर फाइंडिंग द मीडियम ना, तो मीडियम जब भी होगा यू नीड टू फाइंड द सॉर्टेड। अगर ऐसे कुछ वैल्यू देता है लाइक 5 4 13 3 7 8, तो इसका मीडियम क्या होगा? फर्स्ट यू नीड टू सॉर्ट, अगर सॉर्ट कर दिया 3 4 5 13 17, इसका बीच में कौन सा है? बीच में 5, दैट शुड बी आंसर। ठीक है, बट यहाँ पे सीरीज के साथ ये फिर दो चीजें दिया है, होने टू थिंग्स, और इस तरह का डेटा होगा ना टेबल फॉर्मेट में, यू नीड टू कैलकुलेट दिस वे। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट करना पड़ेगा, तुम पहले सॉर्ट करो। ठीक है, 10 के बाद कौन सा वैल्यू है? 17 होगा। ठीक है, मार्क्स 10 के बाद 17 मार्क्स, देन 18 मार्क्स, देन 10 17 18 24, देन 30, 24 30, देन 45, सॉर्ट कर दो। एंड 17 का कौन सा वैल्यू है? 17 का दैट इज 7, तो 5 प्लस 7 क्वांटिटी 12, दैट 18 का कौन सा वैल्यू? 18 का दैट इज 8, तो 8 प्लस 12 दैट इज 20। नाउ 24 का 4, तो 24 एडेड 5 प्लस 10 12, 7 प्लस 12 प्लस 8 20, एक एडेड करो, देन 30 का कितना? 13, सो 37। नाउ 45 का कितना? 45 का 3, सो 40। ये टोटल वैल्यू। नाउ सी your total value or total frequency, you can say the 40 total number of student, total 40 student है ना, if you check total number of student that is 40, तो इसका मिडिल क्या होगा? अगर n is even, अगर इवन होता है तो मिडिल शुड बी 20 स्टूडेंट, जो 20 स्टूडेंट है एंड 21st स्टूडेंट जो है, उन दोनों का एवरेज होगा, दैट इज मीडियम। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट कौन सा ग्रुप में पढ़ रहे हैं? पहले देखो 20 स्टूडेंट कहाँ पे पढ़ रहे हैं? 20, दैट इज मार्क्स 80 80। अब 21 21 24, that is 24, so 18 plus 24 by 2, that is 42 by 2, 21। your answer should be 21, option 4। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, गलत है। तो कैसे फाइंड करना है पहले देखो, क्या होगा? पहले टोटल नंबर स्टूडेंट फाइंड किया, फिर देखो इवन और ऑडेड। अगर यहाँ पे 41 ऑडेड होता तो यू कैन डायरेक्टली आंसर 20, 20 मींस 18। ठीक है, बट यहाँ पे इवन है, तो इवन है मतलब 20 टर्म लेना पड़ेगा एंड 21 टर्म। तो 20 फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 20 कौन सा मार्क्स में? 18, एंड 21 किस में पढ़ रहा है? 20 में पढ़ रहा है नहीं, तो उससे ज्यादा मतलब 24 में पढ़ रहा है।
तो 24 का मार्क्स कितना है उसका सीरीज, दैट इज 24, तो इन दोनों का sum by 2, that is your answer. So Tina, if you have any doubt you can ask in the comment section. Moving to the next question. बहुत इजी है. यहाँ पे देख, सौरभ हैज कॉइन 5 आरएस 10 आरएस, ठीक है, 10 रुपया का 20 रुपये का, एंड टोटल वैल्यू 460. द नंबर ऑफ 20 रुपीज कॉइन 50% मोर देन 10 रुपीज कॉइन. आई एम टेकिंग 10 रुपीज, जो 10 पैसा का कॉइन इक्वल टू एक्स. तो 20 रुपीज कॉइन कितना होगा, एक्स तो होगा प्लस 50% में 0.5 एक्स, दैट इज 1.5 एक्स होगा. ठीक है. एंड नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन is 20% more than the number of the 5 rupees का कॉइन होगा, x तो होगा प्लस 20% more than 10 rupees कॉइन, 20% more कितना का मतलब 0.2x, that is x plus 0.2x, that is 20% more than 2x, so that is 1.2x. ठीक है. अब इनका टोटल वैल्यू, तो अगर x कॉइन है 10 रुपी करके, तुम्हारा टोटल माने कितना x into 10, यानी कितना, तो 1.5 into 20, यानी कितना होगा 5 into 1.2x x. तो इन तीनों का सम ही तुम्हारा पास टोटल मानी, दैट इज 460. तो यू गेट व्हाट द इक्वेशन. वंस तुमको इक्वेशन मिल गया, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व. 10x प्लस 15 into 20 13, 13x प्लस 5 into 12.9, that is 6x equal to 460, and that is 46x equal to 460, x equal to 10. Now what you need to find the number of 20 rupees coin. 20 rupees कौन सा है, 1.5x, तो यहाँ पे 10 into 1.5, 10 0 0 cancel, तो 15, answer 15. Moving to next question. ये क्वेश्चन बहुत इजी है, नो नीड एनीथिंग. पहले पढ़ो, वाटर एंड मिल्क आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर, द रेशियो, इतना रेशियो था, 115 लीटर मिक्सर इज टेकन आउट. ठीक है, टोटल मिक्सर से पहले 115 लीटर ले लिया. ठीक है. एंड 25 मोर लीटर एडिड, फिर एक तो टेकन है, फिर मैं एडेड किया प्लस 25 लीटर एडिड. आफ्टर एडिंग 25 लीटर द अमाउंट ऑफ मिक्सर, 25 लीटर जब एडेड किया ना, प्लस 25 लीटर एडेड करने के बाद कितना हो गया 600 लीटर. इसका पहले कितना था 25 लीटर के बाद पहले, तो दैट इज 575 लीटर. इतना ही था ना. इतना कब था, जब मैंने 115 लीटर एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि 25 लीटर तब मैंने एडेड किया जब 115 लीटर मैंने टेकन आउट कर लिया लेने के बाद. तो टोटल कितना 575 प्लस 115, 575 प्लस 115, दैट इज 609. तो 690 लीटर पहले इतना ही था, 690 लीटर पहले था, फिर तुमने 115 लीटर ले लिया, दिन फिर 25 लीटर एडिट किया. फाइंड द अमाउंट ऑफ मिक्सर इनिशियली कितना था 690. So that is simple answer. No need any ratio anything. Move to next question. Read the question first of all. क्या बोला है यहाँ पे. Conical vessel 6 semi radius 28 semi height fully filled with water. The water is pure, मतलब पहले conical था, ठीक है, conical, देन तुम्हारा सिलेंडर में ले गया, ठीक है, सिलेंडर में सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम शुड बी इक्वल. वॉल्यूम तो एक ही होना चाहिए, जो कॉनिकल का वॉल्यूम होगा, कौन का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सेकेंड सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम. कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर. एंड इसका फॉर्मूला क्या आता है पाई आर स्क्वायर, दोनों आर आर लेना, दोनों अलग होगा. आर आर पाई तो वैल्यू सेम होगा. आर स्क्वायर पहले का आर, रेडियस कितना है 6 स्क्वायर, एंड हाइट कितना है 2.8 28.8 सॉरी 28.8, एंड सेकंड आर स्क्वायर रेडियस कितना है 9 स्क्वायर, एंड हाइट कितना, आई डोंट नो, you need to find the height. You got the equation.
So now you can easily solve. A is equal to 6 square means 6 into 6 into 28.8 by 9 into 9. That is your answer. एंड ऑल्सो एक 3 है ना, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 1/3. हाँ, तो 3 डिवीजन 1/3. So that is. Then if you have any doubt, you can ask in the comment. I can multiply 6 into 6 into 28.8 by 99, that is 81. 12.8 को फिर से 3 से डिवाइड करो, that is 4.266. So 4.27. 6 is 1, 4.27 you can take. Next question. ABC, ठीक है, टुगेदर वर्क कंप्लीट व्हेनेवर यू हैव वर्क एंड टाइम. जब वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आएगा, पहले 1 डे वर्क फाइंड करो. A प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना होगा? टोटल वर्क जो होगा ना उसका 1/16, दैट इज 1 डे वर्क. एंड ए बी टुगेदर कैन, टुगेदर मींस A प्लस बी 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क दैट इज 1/24. तो अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो आई रिसीव द सी, दैट इज 1/16 माइनस 1/24. ये सी का वर्क होगा. तो फाइंड 16 एंड 24 का एलसीएम कितना होता है? 16 24, that is 48. Yes, 48. And 3 minus 2, that is 1/48. तो 1 डे वर्क, तो सी का कितना टाइम लेगा? दैट इज 48. इसको 1 डे वर्क मिल गया और तुमने इसका रिवर्स कर दिया, दैट इज टोटल टाइम, दैट इज 48. 48 वो 100% का, तो 100% कंप्लीट का टाइम कितना होगा? 48 डेज. तो 1% का कितना टाइम होगा? 48. एंड यू नीड टू फाइंड द 75% एक्चुअली, 75% वर्क. तो 75 40/100, तो 75 का कितना होगा? 48/100 into 75. 3 4 12 36, 36 days. Now question 44. Easy question. Arithmetic mean. देखो, arithmetic mean, geometric mean, okay, of two numbers 75 60. Okay. The ratio of harmonic mean, if you know arithmetic mean, that is AM, and then GM, geometric mean, and harmonic mean, the HM. There is one relation between them. Relation क्या है? तुम्हारा जो geometric mean है इसका इक्वल टू harmonic mean into arithmetic mean. And what I need to, क्या मुझे चाहिए? Harmonic mean and geometric mean का ratio. I can say harmonic mean, ठीक है, इक्वल टू GM स्क्वायर बाय AM. और मुझे हार्मोनिक मीन बाय जियोमेट्रिक मीन एक तो चाहिए, GM इक्वल टू GM बाय AM. मुझे यही तो चाहिए, AM बाय GM. एंड GM बाय AM मुझे तो पता है पहले से ही. देखो, अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन 75 60. तो पहले जियोमेट्रिक मीन दैट इज 60 एंड अरिथमेटिक मीन 75, 75 ही ना. 12 5 से करो 15, फिर 4 5 4:5. इससे तो यू कैन डिवाइड मोर फर्दर. 4:5 द रेशियो, 4:5. Next, move on to the next question. Question number 10. Question के लिए solution acid. Okay. पहले क्वेश्चन को रीड करो, you can try. This question from the mixture. Solution A and B. एक solution A है, एक B है, ठीक है. Acid and water in the ratio, इसमें कितना रेशियो? 5:6. एंड इसमें कितना? 7:4. टोटल पार्ट कितना है? टोटल रेशियो 11 पार्ट. यहाँ पे टोटल, यहाँ पे भी 11 है, ठीक है, कोई बात नहीं. देखो, एसिड रेस्पेक्टिवली A and B mixed into the 3 and 4 part.
अब देखो ए बी को मिक्स किया, ए प्लस बी, दैट इज द रेशियो 3:5 में। तो यहाँ पे जो ए का, देखो ए में ए पहले सॉल्यूशन ए देखो, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए में देखो, सॉल्यूशन ए में रेशियो कितना है 5:6। यहाँ पे एसिड टोटल पार्ट कितना है 11। तो एसिड कितना है, एसिड एसिड इक्वल टू एक्चुअली 5/11 है, बट यहाँ से मुझे 3 पार्ट, यहाँ पे 3 रेशियो मिस करना है, तो दैट इज 3। तो मुझे एसिड फॉर्म ए से मुझे इतना एसिड लेना है, एसिड, और यू कैन से एसिड फॉर्म ए, मुझे ए से कितना एसिड लेना है, दैट इज दिस रेशियो। 3 रेशियो पार्ट, जो 3 रेशियो तुमने लेना है ए से एंड बी से, तो ए और बी को मिक्स किया 3:5, तो 3 रेशियो बराबर ए से आएगा, 5 रेशियो बी से आएगा, एंड सेम रेशियो वाटर, एसिड एंड वाटर मिक्स है, वाटर, यस। तब मल्टीप्लाई कर दो 15/11। नाउ वाटर कितना आएगा, W1 एंड दिस वन A1, तो वाटर कितना आएगा 6/11 into 3, दैट इज 11, 18/11। ना बी से कितना आएगा, बी से सॉल्यूशन बी, दैट इज फर्स्ट एसिड 1, A2, एसिड 2, A2 कितना है 7, 7/11 मल्टीप्लाई 5, बिकॉज यू मिक्स ए रेशियो 3:5, बी का 5 रेशियो से, ठीक है, कोई बात नहीं। 35/11 and water 4/11 into 5, 20/11, ठीक है। अब देखो टोटल तुम्हारा एसिड एंड वाटर कितना हुआ, अब टोटल, टोटल एसिड कितना होगा, टोटल TA, टोटल एसिड पहले कितना था 15, पहले से 15/11 आया, एंड सेकेंड से 35/11 आया, ओके, तो इट शुड बी 50/11। एंड टोटल वाटर पहले से कितना आएगा 18/11, एंड सेकेंड से 20/11, दैट इज 38/11। तो इन दोनों का जब मिक्सर, जो रेशियो होगा, तो इन दोनों का रेशियो कितना है, फाइंड द रेशियो 50/11 into 38/11, so that is 50:38, or 25:19। this one total water and total acid, acid and water का रेशियो देखो। अब जितने एसिड एंड टोटल का रेशियो वही तुम्हारा सॉल्यूशन है 352 ml सॉल्यूशन। तो अब देखो यहाँ से टोटल, टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो इफ यू दिस इज 44, तो 44 जो ना पार्ट से वही मेरे एक्चुअल सॉल्यूशन, दैट इज 352 ml। तो वन पार्ट बराबर कितना होगा, वन पार्ट बराबर 352/44, दैट इज 8। एंड आई नीड टू फाइंड टोटल वाटर, टोटल वाटर मतलब 25, 25 into 8, 25 के 8 से मिलेगा 200 होता है, 200 टोटल एसिड, एंड टोटल वाटर कितना का 19 into 8, दैट इज 152, 19 into 8, yes 152, इतना ml हो गया। नाउ वी गॉट टोटल एसिड एंड टोटल वाटर, ठीक है, मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन को देखो, हाउ मच वाटर should added to make the solution containing acid and water ratio 60:9, ठीक है, 10:9, सॉरी 16, 10:9। देखो जो वाटर मुझे एडेड करना है, तो मेरे एसिड जो वही रहेगा, लेकिन वाटर में मुझे एडेड करना है, मैं मान लो x एडेड किया, तो उसका रेशियो, ना न्यू रेशियो बिकम 10/9। नाउ मुझे पता है ये कितना वैल्यू है, दैट इज 200, 200 बाई TW, W का वैल्यू 152/x बाई 10/9, 0 0 कैंसिल कर दो, तो 152 प्लस x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 152, दैट इज 28, 28 होता है, तो 28 ml यू नीड टू मिक्स, आंसर। थोड़ा लंबा था, तुमको फाइंड करना पड़ा बहुत कुछ चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the question. In a business A, B and C invest their capital, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू टाइम प्लस टाइम इनटू, नॉट प्लस, कितना टाइम एंड कितना मनी अमाउंट, ठीक है। तो तीनों का प्रॉफिट क्या देखो, यहाँ पे अगर 4x, यहाँ पे मान लो तो दे आर
ए बी सी इन्वेस्ट देयर कैपिटल, कैपिटल से अमाउंट, इसने 4x किया ए ने, 5x किया बी ने, एंड 8x किया सी ने। द रेशियो ऑफ द मंथ, मंथ्स मीन टाइम, पहले ए का मतलब 3y, इसका 2y एंड 4y, तो इसका प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, मल्टीप्लाई 12xy रेशियो 10xy रेशियो 32xy 32, एंड now xy कैंसिल आउट, तो कितना 12 10 32, ठीक है। अब इसको काउंट 2 से तो डिविजन होगा 6 5 एंड 16, इतना रेशियो से उन लोग का प्रॉफिट होगा पहली बार, ठीक है। एंड टोटल रेशियो कितना है, व्हाट आई नीड टू फाइंड ए प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो इफ सी गेट शेयर प्रॉफिट व्हिच इज 5280 मोर देन बी, सी को जो मिला इतना ज्यादा मिला, तो इन लोग का कितना, देखो इसका रेशियो देखो, ए को कितना मिलेगा प्रॉफिट का 6 पार्ट, बी को कितना मिलेगा 5 पार्ट, सी को कितना मिलेगा 16 पार्ट, तो बी एंड सी के बीच का डिफरेंस कितना पार्ट है, 11 पार्ट, 11 डिफरेंस है ना, 16 माइनस 5 दैट इज 11 पार्ट, तो 11 पार्ट ज्यादा मिला, और 11 पार्ट जो ज्यादा मिला उसको कौन सा रेशियो, दैट इज 5:8, इतना अमाउंट ज्यादा मिला, तो 11 पार्ट है, तो 1 पार्ट बराबर कितना का 5280 बाई 11, तो अगर इसको तुम डिवाइड करोगे 5280 बाई 11 480, तुमको 480 ज्यादा मिला, एंड 480 जो है 1 पार्ट बराबर 480, और मुझे फाइंड क्या करना है ए का, ए मतलब 6 पार्ट, तो मल्टीप्लाई इंटू 6 2880, the answer should be 2880, that is option B. Now geometric mean of the data 5, geometric mean you should know, so 3 value मतलब q 5 into 75 into 9, that is geometric mean, you can directly answer 5 5, यहाँ पे देखो 5 5 into 25 into 3 into 9, 9 means 3 into 3 and 25 means 5 into 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 पर क्यूब, क्यूब 3 5, 5 पर क्यूब into 3 क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब है, तो एक 5 एक 3 आ जाएगा, दैट इज 15, योर आंसर। ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जियोमेट्रिक मीन तो बहुत इजी है, यू शुड नो अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनी मीन, इंपॉर्टेंट फॉर टीसीएस, नॉट ओनली टीसीएस, यहाँ एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक, कोई भी कंपनी पूछ सकते हैं एप्टीट्यूड रिलेटेड। टाइम वर्क का क्वेश्चन यू कैन सॉल्व टू वे, वन इज इफिशिएंसी एंड सेकंड इज वही यूनिटरी मेथड, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो यूनिटरी मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, एंड सेकंड इज इफिशिएंसी कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखो फॉर ए डूइंग सर्टेन वर्क द इफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, ए का मतलब ए, इफिशिएंसी 3 मतलब 3 यूनिट पर डे में करना पड़ेगा, और यू कैन से 3 यूनिट काम करेगा पर डे में, एंड बी कितना करेगा 7 यूनिट काम पर डे, तो एक डे में कितना 7 यूनिट, एंड सी कितना करेगा 5 यूनिट वर्क पर डे, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क 21 डेज, तो अगर वर्किंग टुगेदर मतलब तीनों एक साथ काम किया तो टोटल कितना यूनिट होगा, टोटल यूनिट एक दिन में, दैट इज 3 + 7 + 5 15 यूनिट, एंड जो तुम्हारा टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क इक्वल टू जो इफिशिएंसी, टोटल जो इफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम जो टाइम लगेगा, ठीक है। इफिशिएंसी कितना है 15, एंड टोटल टाइम कितना लग रहा है 21 days, so 21, that is your total work, so multiply 15 into 20, that is 315, check one time, verify, 15 into 21 315, so you got your total work 315। now total work मिल गया, बी alone can complete the original work, कितना दिन लगा बी के लिए, वही ना complete work, तो बी के लिए कितना लगा, टोटल वर्क 315, इफिशिएंसी बी का कितना है, बी का इफिशिएंसी 7 था, 7 एंड टाइम, तो फाइंड द टाइम, यू विल गेट योर आंसर, तो टाइम इक्वल टू 315/7,
So just multiply 315 by 7. Divide. That is 45. 45, option B. And also I have started live class for solving everything from the scratch. Actually, CS fundamental, coding, aptitude, logical, for on campus and off campus preparation. And this one live class, so this one paid version. If you want to join the live class, check the description and join the WhatsApp community. You can message me. And it is from the different from the YouTube, as this one on placement oriented and 3 month. In the 3 month, I'll complete everything from the scratch, whatever you need for your placement oriented. जो भी लगेगा everything for SBC company like TCS, Cognizant, Capgemini, Accenture, Deloitte. ठीक है, हर चीज है जैसे CS फंडामेंटल कोडिंग, कोई भी लैंग्वेज बेसिस नहीं. आई विल राइट कोड C++, जावा, पाइथन, हर लैंग्वेज के लिए. मेन फोकस अंडरस्टैंड द लॉजिक. एंड सीएस फंडामेंटल जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उप्स, डीबीएमएस, सीएन, कंपोनेंट का एसक्यूएल, एप्टीट्यूड लॉजिकल में हर टॉपिक, उसके साथ कंपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दिस वन विल अप नॉट यूट्यूब. ठीक है, ये लाइव क्लास होगा जो जी मीट में कराऊंगा मैं. So if you want, you can join my WhatsApp community and directly message me. And the price, just 1K per month. So next question. बहुत easy है question, to be honest. The height and the radius of cylinder in the ratio 7x and 3x. पहले height है, then radius है. ठीक है. The 511, the 5 by 11 of the part of the vessel में total जो volume का 511 equal to 2.3 liter. 2.3 liter means again 2430 cc. We know 1 liter equal to 1000 cc. So it will help in the calculation better. So volume कितना होगा? 2430, not 10 होगा, 20 नहीं, by 5 into 11. So calculate 2430 into 11 by 5. 5346. 5346. तो 5346 तुम्हारा वॉल्यूम है. ठीक है. व्हाट इज द कार्व्ड सरफेस एरिया? टू फाइंड कार्व्ड सरफेस एरिया यूनिट की हाइट एंड रेडियस तो चाहिए, एंड सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम v. यू नो द वॉल्यूम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 5346. ठीक है. अब पुट द वैल्यू. तुमने एक बार वैल्यू पुट कर दिया. पाई मींस 22/7 एंड आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है? 3x, दैट इज 9x स्क्वायर. ठीक है. एंड h का वैल्यू कितना है? h दैट इज 7x. 7x इक्वल टू 5346. ठीक है. अब 27 ऐसे कैंसिल. 22 into 9 दैट इज 192 और x क्यूब इक्वल टू 5346 by 198. So by 198 that is 27. So this one 27. 27 3 cube. So x equal to 3. Now if you know the surface of cylinder, that is 2 pi r h formula. 2 into 22/7. r mean r कितना था? 3x. x का वैल्यू कितना है? 3 into 3 and h का वैल्यू 7 into x, that is 3. 7 7 cancel. 3 3 27. 27 into by just multiply now. 22 4 into 27 118. ऑप्शन ए. सो टीन नाउ, अगर किसी का कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना कमेंट में. एंड द लास्ट क्वेश्चन of the aptitude. And if you want live class, join my WhatsApp community and do message me. Rahul and Sachin can complete work 60 days and 40 days respectively. Rahul start working 120% of his capacity. ठीक है. तुमका टोटल राहुल ने काम किया 60 डेज में,
एंड सचिन ने काम किया 45 डेज, तो टोटल काम कितना का? इफ यू फाइंड टोटल वर्क, यू ऑलवेज द एलसीएम। तो दोनों अगर काम किया, इन दोनों जब खत्म करेंगे ना 60 एंड 45, तो द एलसीएम एक्चुअली विल बी टोटल वर्क। ठीक है, और यू कैन से 1/60, हाँ इसका 1/40। राहुल एंड सचिन कैन कंप्लीट वर्क 60 डे 40 डेज, यहाँ पे 45, तो अगर तुमने एलसीएम ले लिया तो 180 एलसीएम होता है। तो 180 एलसीएम एक्चुअली टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क एक्चुअली 180 एलसीएम। ठीक है, तो इफिशिएंसी कितना का? इफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क, तो 1 डे राहुल का वर्क कितना? राहुल इफिशिएंसी ईएफ कितना का? टोटल वर्क बाय 60, दैट इज 3। एंड सचिन का इफिशिएंसी कितना होगा? 180/45, इफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क, दैट इज 4 यूनिट पर डे, इतना यूनिट पर डे। ठीक है, राहुल स्टार्ट वर्किंग 120% ऑफ हिज कैपेसिटी। 120%, वो जरा पहले कितना 3 यूनिट, वैसे 120% मीन 1.2 ज्यादा। ठीक है, दैट इज 3.6। न्यू वर्क राहुल कितना 3.6। now how many days that will complete together? 70% of the work। ठीक है, टोटल वर्क 180, तो 70% कितना होता है? देखो मल्टीप्लाई 70% मीन 0.75, 0.75 दैट इज 135। अब दोनों का वर्क, पहले राहुल 3.6 अब कम कर रहे हैं, एंड जो सचिन का तो इंक्रीज नहीं आया, दैट इज 4। तो नाउ 7.6 यूनिट काम करे पर डे, यूनिट पर डे। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन फॉर्मूला, टोटल वर्क 135 इक्वल टू जो इफिशिएंसी, कॉम्बाइन इफिशिएंसी दैट इज 7.6 इनटू टाइम। ठीक है, टोटल वाला अभी 135 हुआ क्योंकि 75% दैट इज 135। सो यूज द फॉर्मूला 135 by 7.6, 17.7 something, so that is option 2। 70.76 होना चाहिए, 70.64 क्यों आ रहे हैं? 135 सही है ना, 135 by 7.6, हाँ 7.76 आना चाहिए, 7.7। so you can answer this one, option B। so team, if you have any doubt you can ask in the comment section, and the next video will be logical reasoning, and at least I'll solve 20 questions regarding logical reasoning and previous year actual question.